In life's most painful crossroads, the hardest decision is not about where to go, but whether to stay, especially when love is tangled with the manipulations of a narcissist. Dr. Ramani Durvasula's book, Should I Stay or Should I Go, is not just a guide, it's a survival map that shines light on the confusion, the gaslighting, and the emotional roller coaster of toxic relationships. With raw honesty and psychological depth, this book arms you with the clarity to recognize the truth, the strength to protect your sanity, and the courage to choose healing over chaos. If you've ever questioned your worth, doubted your instincts, or felt trapped in endless cycles of emotional abuse, this book whispers the words you need most. You are not alone, and you have the power to break free. Have you ever felt drained, manipulated, or doubting your own worth around someone you deeply cared for? That's exactly what Dr. Ramani Durvasula uncovers in her book, It's Not You, a powerful guide to identifying and healing from narcissistic people. This New York Times bestseller walks you through the hidden patterns of toxic relationships, the emotional traps narcissists set, and, most importantly, how to reclaim your peace, confidence, and self-respect. If you've ever asked yourself, why am I never enough? This book gives you the life-changing answer. It's not you, it's them. For more insights on books that heal, empower, and inspire, follow this page and never miss your next life-changing read. Edward W. Said's groundbreaking book Orientalism exposes how Western scholars and writers historically misrepresented the East, portraying the Middle East and Asia as backward, irrational, and always in need of control. Said explains that Orientalism was not just an academic idea, but a powerful political tool used to justify colonialism and domination over Arab and Muslim societies. Even in 2025, its legacy is clear. Israel continues its oppression of Palestine, denying land, culture, and human rights, just as Orientalist discourse once painted the East as weak and subhuman to legitimize domination. This book forces us to see how knowledge and power are intertwined, and how distorted narratives are used to sustain injustice. What if the smallest beam of light could uncover the deepest shadows of truth? Susan Joy, the brilliant mind behind the National Book Award-winning Trust Exercise, returns with her powerful new novel, Flashlight, a story that blends haunting beauty with unflinching honesty. Shortlisted for the Booker Prize 2025, this novel pulls readers into a world where memory, loss, and survival collide, illuminating the fragile line between darkness and revelation. Choi's masterful storytelling once again proves why she's among the most daring voices in contemporary fiction. Don't just read a novel, experience a journey that will linger long after the final page. Follow our page for more book gems, award-winning stories, and author insights that every true reader must explore. What happens when the line between performance and reality begins to blur? Katie Kitamura's Audition, shortlisted for the Booker Prize 2025, is a haunting exploration of identity, art, and the fragile boundaries we cross in search of meaning. With prose that pulls you into the quiet intensity of its world, this novel isn't just read, it's experienced. So if books that challenge the way you see life excite you, then this one deserves a place on your shelf. Follow this page for more powerful stories and unforgettable books. What happens when the coldest winter of the century isn't outside your window, but inside your home? Andrew Miller's The Land in Winter, shortlisted for the Booker Prize 2025 and already crowned with the Walter Scott Prize for Historical Fiction, pulls readers into the frozen landscapes of 1962 England, where two neighboring couples, both awaiting children, find their lives cracking under the weight of secrets, betrayals, and the suffocating silence of confinement. A haunting atmospheric masterpiece that stands shoulder to shoulder with recent Booker winners like Paul Lynch's Prophet Song in its ability to transform history into a mirror for today. What happens when one of the world's most brilliant intellectuals turns his gaze on the most urgent moral and political crisis of our time?
In The Question of Palestine, Edward W. Said delivers a fearless and deeply human exploration of history, identity, and justice, laying bare the roots of the Palestinian struggle and exposing the global silence that surrounds it. With his signature clarity and moral courage, Said dismantles myths, confronts power, and insists on the undeniable rights of a people long denied recognition. More than a book, it is a call to conscience, a voice that refuses erasure, and a timeless reminder that truth, once spoken, cannot be unspoken. Power, Politics and Palestine. The Fateful Triangle by Noam Chomsky dives deep into one of the most controversial and consequential relationships of our time, the United States, Israel, and the Palestinians. With sharp analysis and fearless critique, Chomsky exposes how media narratives, political alliances, and global power struggles have shaped decades of conflict and injustice in the Middle East. This is not just history, it's a lens to understand today's headlines and tomorrow's challenges. If you're passionate about truth, justice, and political awareness, this book is a must-read. Books and Edge. For more powerful insights and books that uncover the realities the world needs to know, make sure to visit our page and join the journey of awareness. Simha Flappan's groundbreaking work, The Birth of Israel, Myths and Realities, shatters the long-accepted narratives surrounding the creation of Israel in 1948, exposing how myth-making has shaped modern history. Drawing on political documents, memoirs, and first-hand accounts, Flappan dismantles 7 central myths, from the idea that Palestinians left voluntarily to the belief that Israel fought only a defensive war, and instead reveals a more complex story of expulsions, power struggles, and missed chances for peace, making this book not just a history but a bold act of truth-telling that forces readers to question what they thought they knew about one of the world's most enduring conflicts. All That Remains is a monumental work that preserves the memory of more than 400 Palestinian villages that were occupied and depopulated by Israel during the 1948 Nakba. Edited by renowned historian Walid Khalidi, this book is not just a historical record, but a voice for those who were silenced. It documents with painstaking detail the geography, demography, architecture, agriculture, and oral testimonies of each village, supported by maps and rare photographs. The book exposes how a vibrant Palestinian society, with its schools, mosques, churches, olive groves, and cultural traditions, was systematically erased yet lives on through memory and resistance. More than an academic reference, it is a moral archive that speaks of loss, displacement, and the resilience of a people whose heritage refuses to be forgotten. This masterpiece stands as both history and witness, an unflinching reminder that behind every ruined stone lies a story of home, belonging, and justice denied. It's Your Baby, The Indian Parent's Guide to the First 2 Years by Dr. Saroja Balan is a complete companion for new parents, blending expert medical advice with practical guidance for everyday care. Covering everything from meal plans, growth charts, and immunization schedules to remedies for common ailments, this book empowers parents to confidently nurture their baby's health and development. Written with warmth and clarity, Dr. Balan transforms her medical expertise into a simple, practical roadmap that makes the journey of parenting less overwhelming and more joyful. This is not just a guidebook. It's a trusted friend for every Indian parent navigating the crucial first 2 years. What is self-awareness? आपकी डीपर नीड्स क्या हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, मेंटल मॉडल्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, गोल्स क्या हैं, एंड देन आपकी उस बारे में मेमोरीज क्या हैं, उसकी बेस के ऊपर आप क्या इंक्लिनेशन रखते हैं, जिसको बायस बोलते हैं, बायसनेस, कि मैं उधर जाऊंगा ही जाऊंगा, बिहेवियर उस तरफ करूंगा ही करूंगा अगर आप मेरा ये वाला पूरा का पूरा मिक्सचर जो भी इक्वेशन बनाएगा। मसला ये खाली सेल्फ अवेयरनेस में ये नहीं आता। सेल्फ अवेयरनेस में ये चीजें अपने लिए और इन चीजों का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर और लोगों का बिहेवियर बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट, ये दोनों देखने पड़ेंगे। सेल्फ अवेयरनेस ही का तकाजा है कि आपको सेल्फ के इम्पैक्ट ऑन अदर्स भी पता हो, वरना सेल्फ अवेयरनेस का कोई मसरफ है ही नहीं। हर माँ चाहती है
कि उसका बच्चा स्वस्थ और खुशहाल बढ़े हो, लेकिन सही जानकारी की कमी अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। हेल्दी स्टार्ट डॉक्टर इमरान पटेल की वो किताब है जो आपको शिशु की देखभाल, पोषण, नींद और विकास के हर छोटे बड़े पहलू पर भरोसेमंद मार्गदर्शन देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक साथी है जो मातृत्व की यात्रा को आसान और संतुलित बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की शुरुआत सबसे हेल्दी हो और आपकी मुस्कान सबसे सुकून भरी, तो यह किताब आपके लिए है। ऐसी ही किताबों के लिए पेज को जरूर फॉलो करिए। थैंक यू। Ever wondered why teenagers take risks, stay up late, and struggle with impulse control? In The Teenage Brain by Dr. Francis E. Jensen with Amy Ellismat, a leading neuroscientist unlocks the fascinating science behind the adolescent mind, revealing that the brain is still under construction well into the 20s. Backed by cutting-edge research, this book explains why teens learn faster than adults, yet are more vulnerable to stress, addiction, and distraction. From sleep cycles to social media, memory to mental health, it offers parents and educators a survival guide to raising adolescents with patience, wisdom, and science on their side. Packed with real-life insights and practical strategies, it's not just a parenting manual, it's a roadmap to understanding the extraordinary potential and challenges of growing up. The Art of Talking with Children by Rebecca Rolland isn't just a parenting guide. It's a transformative blueprint for nurturing kindness, creativity, and confidence in the next generation. As part of our growing parenting series, this book stands out as a modern essential, combining practical wisdom with research-backed insights that every thoughtful parent and educator needs. If you're someone who values the finest in non-fiction, make sure to explore more on our page, where we feature only the best books that shape intelligent conversations and meaningful lives. After all, the way we talk today will define the leaders of tomorrow. What if you could understand your child's mind in a way that transforms every challenge into an opportunity? The Whole Brain Child by Daniel J. Siegel and Tina Payne Bryson isn't just another parenting guide. It's a revolutionary roadmap that shows you how to nurture resilience, empathy, and balance in your child's developing brain. Packed with 12 powerful strategies, this book bridges science and everyday parenting, making complex neuroscience simple, practical, and life-changing. As part of the globally acclaimed parenting series, this bestseller is the doorway to raising calmer, happier, and emotionally connected kids. Begin here and step into a world where parenting feels less like a struggle and more like a journey of growth, love, and deep connection. No Drama Discipline by Daniel J. Siegel and Tina Payne Bryson is part of their groundbreaking parenting series that also includes The Whole Brain Child and The Power of Showing Up, and together these books have reshaped modern parenting. In No Drama Discipline, the authors show that discipline is not about punishment, but about teaching with empathy and connection. Using their whole brain approach, they guide parents to respond to misbehavior without anger, to calm the chaos, and to turn every struggle into a learning opportunity. As a cornerstone of this parenting series, the book empowers mothers and fathers to nurture cooperation, emotional intelligence, and lifelong resilience in their children, making it an essential read for anyone committed to raising kids with both love and wisdom. दोस्तों, आज आपको भारत की 6 सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज के बारे में बताएंगे, जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। नंबर 1, विंग्स ऑफ फायर। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी है, जो एक पेपर बॉय से उठे और भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के मिसाइल मैन ने हमें सिखाया कि सपने सच होते हैं अगर हौसला और मेहनत साथ हो। नंबर 2, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा, भारत की सबसे प्रभावशाली जीवनी, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा से दुनिया को दिखाया कि सच की ताकत सबसे बड़ी है। नंबर 3, प्लेइंग इट माय वे। सचिन तेंदुलकर की कहानी, क्रिकेट का भगवान, जिन्होंने 22 साल के करियर में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व का जज्बा भर दिया। नंबर 4, एन ऑटोबायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका विजन और नेतृत्व ने एक नए भारत की बुनियाद रखी। नंबर 5,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक कहानी, जो एक भारतीय संत थे और जिन्होंने ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने रखा। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। और नंबर 6, माई लाइफ इन फुल, इंदिरा नोई की प्रेरणादायक यात्रा, एक भारतीय लड़की जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली बिजनेसवुमन बनी। पेप्सिको की सीईओ बनकर उन्होंने साबित किया कि करियर और परिवार दोनों संतुलित किए जा सकते हैं। और दोस्तों, ये सब भारतीय जीवनी सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी के असली सबक हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। तो अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो इस पेज को जरूर फॉलो करें और कमेंट्स में लिखें कि आप सबसे पहले कौन सी भारतीय बायोग्राफी पढ़ना चाहते हो। हिस्ट्री के सबसे क्रिएटिव जीनियसेस में से एक लियोनार्डो द विंची की बायोग्राफी, लियोनार्डो द विंसी, सिर्फ एक आर्टिस्ट की स्टोरी नहीं है बल्कि इमेजिनेशन, इनोवेशन और जीनियस की वो दास्तां है जिसने आर्ट और साइंस दोनों को रीडिफाइन किया। इस बुक में बताया गया है कि कैसे मोनालिसा से लेकर फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस तक द विंची ने सेंचुरीज पहले वो सब इमेजिन किया जो आज रियलिटी बन चुका है। ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 10th और फाइनल बुक है जिसमें हम उस लेजेंड को याद कर रहे हैं जिसकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी आज भी दुनिया को इंस्पायर करती है। अगर आप मानते हो कि इमेजिनेशन ही असली पावर है तो कमेंट्स में लिखो क्रिएटर और सीरीज को एंड तक फॉलो करने के लिए पेज को सपोर्ट करो। When Breath Becomes Air सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि लाइफ और डेथ के बीच लिखी गई सबसे इमोशनल और पावरफुल दास्तान है। पॉल कलानिथी एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन जिन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में यह सवाल उठाया कि आखिर मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि कैसे इलनेस और स्ट्रगल इंसान को नए नजरिए से जीना सिखाते हैं। ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 9th बुक है जिसमें हम ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं जिसकी स्टोरी आज भी करेज और ह्यूमैनिटी का सबक देती है। अगर आप मानते हो कि जिंदगी का असली अर्थ स्ट्रगल और होप में छुपा है तो कमेंट्स में लिखो होप #ट्री और अगला चैप्टर मिस ना करने के लिए पेज फॉलो करना मत भूलें। अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट की सबसे पावरफुल आवाजों में से एक मैल्कम एक्स की ऑटोबायोग्राफी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स। सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के स्ट्रगल और जस्टिस की फाइट की दास्तान है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे एक ट्रबल्ड यूथ और स्ट्रीट हसलर ने नॉलेज और फेथ की पावर से खुद को ट्रांसफॉर्म किया और एक फियरलेस लीडर बनकर रेसिज्म और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 8th बुक है जिसमें हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनकी करेज और विजन ने हिस्ट्री का रास्ता बदल दिया। अगर आप मानते हो कि एजुकेशन और करेज इंसान की तकदीर बदल सकते हैं तो कमेंट्स में लिखो जस्टिस और नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करने के लिए पेज फॉलो करना मत भूलें। यूरोप की सबसे पावरफुल वुमेन रूलर्स में से एक कैथरीन द ग्रेट की बायोग्राफी, कैथरीन द ग्रेट पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन, सिर्फ एक क्वीन की स्टोरी नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस की जर्नी है जिसने रशिया को एक एम्पायर में बदल दिया। इस बुक में बताया गया है कि कैसे एक जर्मन प्रिंसेस जिसने मुश्किल हालातों का सामना किया आगे चलकर रशिया की एम्प्रेस बनी और रिफॉर्म्स से लेकर कल्चर तक पूरे देश को बदल डाला। ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 7th बुक है जिसमें हम उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन को याद कर रहे हैं जिनकी लीडरशिप और विजन आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है। अगर आप मानते हो कि वुमेन भी वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीडर्स बन सकती हैं तो कमेंट्स में लिखो क्वीन और अगला चैप्टर मिस ना करने के लिए पेज फॉलो करना मत भूलें। वर्ल्ड वॉर 2 में अपने लीडरशिप और करेज से पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाले विंस्टन चर्चिल की बायोग्राफी चर्चिल अ लाइफ सिर्फ एक पॉलिटिशियन की स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसे लीडर की जर्नी है जिसने मुश्किल हालातों में अपनी कंट्री और एलाइज को इंस्पायर किया। इस बुक में बताया गया है कि कैसे एक सोल्जर, राइटर और स्टेट्समैन बनकर चर्चिल ने हिस्ट्री को डिफाइन किया और डेमोक्रेसी की रक्षा की। ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 6th बुक है जिसमें हम उन लीडर्स को याद कर रहे हैं जिनकी विजन और डिटर्मिनेशन आज भी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। अगर आप मानते हो कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टफ टाइम्स में दुनिया को बचा सकती है तो कमेंट्स में लिखो लीडर और नेक्स्ट चैप्टर मिस न करने के लिए पेज फॉलो करना मत भूलें। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया को रीडिफाइन करने वाले स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी स्टीव जॉब्स सिर्फ एक बिजनेसमैन की स्टोरी नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर की जर्नी है जिसने क्रिएटिविटी और पैशन को लाइफस्टाइल बना दिया।
इस बुक में बताया गया है कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉपआउट ने एप्पल जैसी आइकॉनिक कंपनी बिल्ड की, फेलियर्स के बाद कमबैक किया और आईफोन, आईपैड और मैक जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके डिजिटल रेवोल्यूशन का नया एरा शुरू किया। ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 5th बुक है, जिसमें हम उन ग्लोबल आइकॉन्स को याद कर रहे हैं जिनकी विजन और लीडरशिप ने फ्यूचर को रीशेप किया। अगर आप मानते हो कि पैशन और क्रिएटिविटी से दुनिया बदली जा सकती है, तो कमेंट्स में लिखो विजनरी, और नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करने के लिए पेज फॉलो करना मत भूले। साइंस की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स सिर्फ एक साइंटिस्ट की स्टोरी नहीं, बल्कि उस सोच की दास्तान है जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को बदल दिया। इस बुक में बताया गया है कि कैसे एक साधारण स्कूल का लड़का, जिसे लोग स्लो समझते थे, आगे चलकर सेंचुरी का सबसे बड़ा जीनियस बना और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर यूनिवर्स को समझने का नजरिया बदल दिया। ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 4th बुक है, जिसमें हम उन ग्रेट पर्सनालिटीज को याद कर रहे हैं जिनकी विजन और हार्डवर्क आज भी दुनिया को नॉलेज और इंस्पिरेशन की रोशनी देते हैं। अगर आप मानते हो कि क्यूरियोसिटी और मेहनत से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है, तो कमेंट्स में लिखो जीनियस, और नेक्स्ट चैप्टर मिस न करने के लिए पेज फॉलो करना मत भूलो। सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर पूरे साम्राज्य को हिला देने वाले महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में ये बताया है कि कैसे एक साधारण वकील से वो भारत की आज़ादी के आंदोलन का चेहरा बने। यह किताब सिर्फ उनकी जिंदगी का सफ़र नहीं, बल्कि उस सोच का आईना है जिसने पूरे विश्व को अहिंसा और इंसाफ का सबक दिया। और ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 3री किताब है, जहां हम उन महान लोगों की कहानियां जान रहे हैं जिनके विचार और संघर्ष आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं। अगर आप मानते हो कि सच और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है, तो कमेंट्स में लिखो ट्रूथ, और इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए पेज फॉलो करना मत भूलें। एक छोटी सी लड़की जो सिर्फ 13 साल की थी, उसने अपने छुपने के दिनों को एक डायरी में लिखा, और वो डायरी बन गई दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे दर्दनाक कहानी, जिसमें होलोकॉस्ट के जुल्म, एक बच्ची के जज्बात और इंसानियत के लिए उम्मीद का पैगाम छुपा है। एन फ्रैंक की डायरी ऑफ अ यंग गर्ल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि जंग और नफरत में सबसे ज़्यादा नुकसान मासूमियत को होता है। और ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की 2री किताब है, जहां हम उन लोगों की कहानियां समझने वाले हैं जो छोटी उम्र में भी दुनिया को हमेशा के लिए बदल गए। और जब आप इस किताब को देखते या पढ़ते हैं, तो उन पैलेस्टाइन के बच्चों के बारे में भी सोचिए जिनकी मासूमियत और जिंदगी आज उसी तरह छिनी जा रही है, और जिन पर आज भी वैसा ही जुल्म हो रहा है जैसा इतिहास में एन फ्रैंक जैसे बच्चों ने सहा था। अगर आप मानते हो कि कलम में ताकत होती है, तो कमेंट्स में लिखो होप, और अगला चैप्टर मिस ना करने के लिए पेज फॉलो जरूर करें। 27 साल तक जेल की दीवारों के पीछे जिंदगी गुजारने के बाद भी नेल्सन मंडेला ने न अपना जज्बा खोया और न ही इंसाफ के लिए लड़ाई छोड़ी, और इसी सफर को उन्होंने अपनी मशहूर ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बयान किया है, जो सिर्फ उनकी जिंदगी की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क की आज़ादी का दास्तान है। इस किताब में अपार्थाइड के जुल्म, कुर्बानियों का दर्द और एक इंसान के हिम्मत का वो पैगाम है जो हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका को बदल गया। और सबसे खास बात यह है कि ये हमारी बायोग्राफी सीरीज की पहली किताब है जिसमें हम एक एक करके दुनिया के उन लोगों की कहानियां समझने वाले हैं जिन्होंने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप भी चाहते हो कि ये सफर मिस ना हो, तो कमेंट्स में लिखो फ्रीडम, और इस नए सफर का हिस्सा बनने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलो। ओपी गौबा की किताब इंडियन पॉलिटिकल थॉट भारत के बड़े सोचने वालों के विचार समझाती है, जिसमें पुराने से लेकर नए समय तक के थिंकर्स शामिल हैं। इसमें कौटिल्य के राजनीति और अर्थशास्त्र के विचार, बुद्ध का धम्म और राज्य की सोच, राजा राममोहन राय के समाज सुधार, तिलक का स्वराज और राष्ट्रवाद, टैगोर का ह्यूमनिज्म, एम.एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म, सर सैयद अहमद खान के शिक्षा और सुधार के विचार, गोखले की मॉडरेट पॉलिटिक्स, एनी बेसेंट का होम रूल, गांधी का सत्याग्रह और अहिंसा, नेहरू का सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, और अंबेडकर का सामाजिक न्याय और संविधान बनाने का विचार लिखे गए हैं। ये किताब दिखाती है कि भारत की राजनीतिक सोच कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी। और अगर आपको ऐसे सिंपल और यूजफुल पॉलिटिकल नॉलेज चाहिए, तो पेज फॉलो कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय लिखिए।
हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म जे नटराजन की एक ऐसी किताब है जो भारतीय पत्रकारिता की पूरी कहानी सुनाती है। इसमें बताया गया है कि कैसे 1780 में हिक्की का बंगाल गजट से अखबारों की शुरुआत हुई और फिर कैसे अखबार आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बने। केसरी और हरिजन जैसे अखबारों ने लोगों की सोच बदली और अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाई। इस किताब में प्रेस पर लगे कड़े कानून, सेंसरशिप और उन बहादुर पत्रकारों का जिक्र है जिन्होंने सच बोलने से कभी डर महसूस नहीं किया। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उस सफ़र की दास्तान है जिसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत नींव दी। जो भी इंसान शब्दों की ताकत को मानता है उसके लिए ये किताब ज़रूर पढ़ने लायक है। अब आप बताइए कि आज का मीडिया भी पहले जैसा साहसी है? अपना जवाब कमेंट में लिखिए और ऐसे ही और सच जानने के लिए इस पेज को फॉलो करना मत भूलिए। इंडिया इन फ्री फॉल संजय झा की एक बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग किताब है जो भारत के सियासी मंजरेनामा का गहरा और क्रिटिकल एनालिसिस करती है। ये किताब रूलिंग बीजेपी और मोदी सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाती है और समझाती है कि कैसे लोकतंत्र की बुनियादें, अर्थव्यवस्था की स्थिरता और सामाजिक एकता बड़े खतरे के सामने खड़ी हो रही हैं। ऑथर ने खुली तौर पर दिखाया है कि पावर का हद से ज्यादा केंद्रीकरण, इंस्टीट्यूशंस की कमजोर होती क्रेडिबिलिटी और सोसाइटी में बढ़ते फासले देश को एक ऐसे मोड़ पर ले आ सकती हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी। ये किताब सिर्फ एक क्रिटिक नहीं बल्कि एक वार्निंग है जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो भारत के मुस्तकबिल और उसके लोकतांत्रिक दस्तूर की फिक्र रखता है। एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है भारत अपने लोकतांत्रिक रास्ते पर मजबूती से टिक पाएगा या फिर सच में एक फ्री फॉल की तरफ बढ़ रहा है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया शशि थरूर की एक एनालिटिकल और क्रिटिकल किताब है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और उनकी पॉलिसीज को एक पैराडॉक्स के रूप में समझाया है। एक तरफ मोदी अपने आप को गरीबों के चैंपियन, चाय वाला से उठे लीडर और देश को विकास की राह पर ले जाने वाले मसीहा के तौर पर पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सियासत में सेंट्रलाइज्ड पावर, ऑथोरिटेरियन स्टाइल और इंस्टीट्यूशंस की वीकनिंग दिखाई देती है। उनका सबका साथ सबका विकास का नारा एक इंक्लूसिव एजेंडा दिखाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कम्युनल पोलराइजेशन और माइनॉरिटीज के बीच इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इकोनॉमी में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसी पॉलिसीज को शशि थरूर ने कैटास्ट्रोफिक स्टेप बताया है जो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगेटिव साबित हुई। फॉरेन पॉलिसी में मोदी की इंटरनेशनल इमेज और स्टेज प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया गया है, मगर नेबरहुड रिलेशंस और चाइना पॉलिसी में कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाए गए हैं। सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव में उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और मीडिया मैनेजमेंट हाईलाइट किया गया है जो रियलिटी को कवर करता है। किताब का नतीजा ये है कि मोदी एक पैराडॉक्सिकल शख्स हैं जिनके विचार और अमल एक दूसरे से उल्टे दिखाई देते हैं और उनके दौर में भारत एक तरफ ग्लोबल इमेज बनाता है तो दूसरी तरफ अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और सोशल हार्मनी को रिस्क में डाल देता है। रजनी कोठारी की किताब रीथिंकिंग डेमोक्रेसी एक गहरी और प्रभावशाली रचना है जो आज के दौर में जमहूरियत के संकट, सामाजिक असमानता और शक्ति के खिलाड़ियों को समझने का नया नजरिया देती है। इस किताब में कोठारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कमियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई को समझाते हैं और साथ ही ग्रासरूट्स मूवमेंट्स, लोक आंदोलनों और सिविल सोसाइटी की ताकत को उजागर करते हैं जो असल में लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। इसलिए यह किताब सिर्फ एक राजनीतिक विज्ञान का ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसी पुकार है जो हमें लोकतंत्र को नई सोच, नई दिशा और जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए मजबूर करती है। अगर सच में लोकतंत्र पर ऐसी और गहरी सोच पढ़नी है तो पेज को जरूर फॉलो करें और नीचे अपनी राय शेयर करें। आपकी एक लाइन लोकतंत्र की नई बहस को जन्म दे सकती है। रजनी कोठारी की मशहूर किताब कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो बाद में जेम्स मैनर ने रिवाइज की, भारत की राजनीति को समझने के लिए एक बेहतरीन निशानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह जाति और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे राजनीतिक पार्टियां जाति को अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं और मॉडर्नाइजेशन के बावजूद जातीय पहचान का राजनीतिक असर जिंदा है। ये किताब एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल जैसे ग्रुप्स की राजनीतिक मोबिलाइजेशन को समझाती है, जाति और वर्ग के बीच के संबंध को खोलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों के केस स्टडीज के जरिए बताती है कि जाति सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक डायनामिक पॉलिटिकल शक्ति है जो पावर स्ट्रक्चर को तैयार करती है।
राजनी कोठारी, जो एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के संस्थापक थे, उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की असली रूह को समझाने के लिए जाति और राजनीति के इस गहरे रिश्ते को दुनिया के सामने रखा। Stephen Lukes, a renowned British political theorist and professor at NYU, in his famous book Power, A Radical View, explains that politics is not only about visible decisions, but also about the deeper forces that shape people's thinking, preferences, and choices. In this work, he presents the three dimensions of power that range from open authority to the hidden ideological structures of society, making this book a timeless classic in political science, with one striking line that captures its essence. Is it not the supreme and most insidious exercise of power to prevent people, to whatever degree, from having grievances by shaping their perceptions, cognitions, and preferences in such a way that they accept their role in the existing order of things? Stephen Lukes, a renowned British political theorist and professor at NYU, in his famous book Power, A Radical View, explains that politics is not only about visible decisions, but also about the deeper forces that shape people's thinking, preferences, and choices. In this work, he presents the three dimensions of power that range from open authority to the hidden ideological structures of society, making this book a timeless classic in political science, with one striking line that captures its essence. Is it not the supreme and most insidious exercise of power to prevent people, to whatever degree, from having grievances by shaping their perceptions, cognitions, and preferences in such a way that they accept their role in the existing order of things? रामचंद्र गुहा की लिखी हुई इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक शानदार और गहराई से लिखी गई किताब है जो 1947 के बाद के भारत की कहानी बयान करती है। इसमें आज़ादी के बाद नए संविधान का निर्माण, विभाजन के जख्म, देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां, रियासतों का विलय, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व, इमरजेंसी, राजनीतिक उतार चढ़ाव, युद्ध, धर्म और जाति के मसले, लोकतंत्र की मजबूती और गिरावट, सब कुछ एक साफ और तथ्यात्मक नजरिए से समझाया गया है। गुहा ने भारत के आम इंसान के संघर्ष, राजनीतिक नेताओं की भूमिका और देश के बदलते रंगों को ऐतिहासिक सबूतों और प्रमाणों के साथ दिखाया है। जहां यह किताब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जिंदा दास्तान है उस लोकतंत्र की जो दुनिया का सबसे बड़ा है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता, समाज सुधारक और न्याय के पहरेदार थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी जाति व्यवस्था तोड़ने और अस्पृश्यता खत्म करने के लिए समर्पित कर दी। उन्हीं की सोच और संघर्ष का सार उनकी मशहूर किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जो 1936 में लिखी गई एक जबरदस्त प्रभाषण के रूप में शुरू हुई और बाद में किताब बनकर सामाजिक क्रांति का प्रतीक बनी। इसमें अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो बराबरी और इंसानियत के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। उन्होंने शास्त्रों की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर व्यक्ति आज़ादी, सम्मान और बराबरी के साथ जी सके। इसी किताब का एक मशहूर विचार है, कास्ट इज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स, जो दिखाता है कि जाति व्यवस्था सिर्फ व्यावसायिक भेद नहीं, बल्कि इंसान को इंसान से अलग करने का एक अत्यंत अन्यायिक ढांचा है। आज भी यह ग्रंथ सामाजिक न्याय और इंसानी बराबरी की लड़ाई का एक अमर दस्तावेज माना जाता है। द सैफरन टाइड, द राइज ऑफ द बीजेपी किंगशुक नाग की लिखी हुई एक अहम किताब है जो भारतीय जनता पार्टी के सफर को डिटेल में समझाती है। इसमें बताया गया है कैसे एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के साथ जनसंघ से बीजेपी बनी और फिर अयोध्या मूवमेंट, राम जन्मभूमि आंदोलन और हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जरिए अपनी जगह बनाकर देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं की लीडरशिप का जिक्र है। साथ ही कोएलिशन पॉलिटिक्स से लेकर 2014 के बाद के युग तक बीजेपी के उदय की कहानी बयान की गई है। और किंगशुक नाग, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबी सर्विस दी और गुजरात दंगों की कवरेज के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड जीता,
उनका तजुर्बा और एनालिटिकल राइटिंग इस किताब को इंडियन पॉलिटिक्स समझने के लिए एक लाजमी रेफरेंस बनाती है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी विनय सीतापति की एक गहरी और रोचक किताब है जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को समझने का एक नया नजरिया देती है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जुगलबंदी का जिक्र है, जो पार्टी की बुनियाद रखने और उसे राष्ट्रीय राजनीति में एक मुख्य शक्ति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रही। किताब दिखाती है कि कैसे हिंदू नेशनलिज्म का विचार आरएसएस और जनसंघ के माध्यम से बीजेपी के सफर को आगे बढ़ाता है। वाजपेयी के नरम और लोकप्रिय नेतृत्व के साथ आडवाणी के कठोर और संगठन पर आधारित नेतृत्व ने पार्टी को दोनों पहलू दिए, लोकतांत्रिक आकर्षण और विचारधारा की एकजुटता। इसी जुगलबंदी के जरिए बीजेपी ने अपने पहले राष्ट्रीय सरकार तक का सफर तय किया और यही बुनियाद बाद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के लिए रास्ता बन गई। किताब के माध्यम से एक तरफ व्यक्ति और विचारधारा का संगम समझ आता है, तो दूसरी तरफ संघ परिवार के कैडर कल्चर, मिडिल क्लास के मूल्यों और संगठन की एकता ने बीजेपी को एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी बनाने में किस तरह से योगदान दिया। ये सारी कहानी डिटेल में बताई गई है, जो आज की राजनीति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री कूमी कपूर ने लिखी है, जिसमें वो अपने पर्सनल और जर्नलिस्ट दोनों एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं जब 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। उस वक्त बेसिक राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, ऑपोजिशन के लीडर्स जेल में डाल दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई और पूरा देश एक तरह से डिक्टेटरशिप के कंट्रोल में था। कूमी कपूर खुद उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में जर्नलिस्ट थीं और उनके हस्बैंड को भी जेल भेज दिया गया था। इस वजह से उन्होंने जो कुछ देखा और झेला सब इस किताब में लिखा है। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल या हिस्ट्री की किताब नहीं है, बल्कि एक असली कहानी है जो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच का फर्क समझाती है और दिखाती है कि आम लोगों और जर्नलिस्ट ने उस वक्त कितना सफर किया। इसीलिए ये किताब आज भी एक ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट रेफरेंस मानी जाती है, जो स्टूडेंट्स, रीडर्स और पॉलिटिक्स समझने वाले सभी के लिए यूजफुल है। ये किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह एक एक्सप्लोसिव मेमोआर है, जिसे संजया बारू ने लिखा है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे। इसमें वो एक इनसाइडर की तरह बताते हैं कि भारत का सबसे ऑनेस्ट और इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर अपने दौर में किस तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील जैसे बड़े डिसीजंस लिए, लेकिन पॉलिटिकल पावर अक्सर कांग्रेस के हाई कमांड के हाथ में थी। ये किताब ना सिर्फ डॉक्टर सिंह की ईमानदारी और सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करती है, बल्कि उनके दौर के पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, सोनिया गांधी के इन्फ्लुएंस और पीएमओ के अंदर के असली पावर गेम को भी एक्सपोज करती है, जो इसे भारत की सियासत समझने वाले हर इंसान के लिए एक मस्ट रीड बनाती है। बुक ऑन लिबर्टी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल पहली दफा 1859 में पब्लिश हुई एक ऐसी टाइमलेस किताब है जो फ्रीडम का असल मतलब समझाती है। इसमें मिल ने बहुत सिंपल और स्ट्रॉन्ग अंदाज में ये कहा कि हर इंसान को सोचने, बोलने और जीने की आज़ादी है, बस शर्त यह है कि उसके एक्शन से दूसरों को नुकसान न हो। इसको ही हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है। मिल कहता है कि सोसाइटी या गवर्नमेंट को कभी भी मुख्तलिफ ओपिनियंस को साइलेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच सिर्फ खुली गुफ्तगू और डिबेट से सामने आता है। वो इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने पर जोर देता है और ये दिखाता है कि असल तरक्की तब होती है जब हर शख्स अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जी सके। ये क्लासिक बुक मॉडर्न डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच का फाउंडेशन बनी और आज भी दुनिया के लिए एक पावरफुल गाइड है जो पर्सनल लिबर्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस समझाती है। एलेक्सिस दे तोक्विल की मशहूर किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका एक ऐसी क्लासिकल मास्टरपीस है जो सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझाती नहीं, बल्कि इंसानी सोसाइटी, फ्रीडम और इक्वालिटी के गहरे असरात को भी एक्सप्लोर करती है। 1835 और 1840 में 2 वॉल्यूम्स में लिखी गई ये किताब ऑथर के सफर और देखने समझने का नतीजा है, जहां उन्होंने अमेरिकन लोगों की जिंदगी, उनकी सियासत, उनके आज़ादी के जज्बे और इंसाफ के निज़ाम को बहुत ही साफ और गहरे अंदाज में समझाया। इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिरर बन गई, जो दिखाती है कि डेमोक्रेसी कैसे इंसान की सोच, अखलाक और माशरती निज़ाम को तब्दील करती है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका को आज भी एक टाइमलेस गाइड माना जाता है, जो हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो पॉलिटिक्स, फ्रीडम और इंसानियत के मुस्तकबिल को समझना चाहता हो।
ये किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बाय सागरिका घोष एक ऐसी इंगेजिंग बायोग्राफी है जो स्पेशली उन रीडर्स को अट्रैक्ट करती है जो पॉलिटिक्स और लीडरशिप के रियल स्ट्रगल्स को समझना चाहते हैं। और लेडीज, अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जो एक औरत के कॉन्फिडेंस और पावर को रिफ्लेक्ट करे तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। राइटर सागरिका घोष एक वेल नोन जर्नलिस्ट और ऑथर है जो अपनी बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग राइटिंग के लिए फेमस है। इस बुक में उन्होंने इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल सफर, उनके डिसीजंस, उनके पावरफुल लीडरशिप स्टाइल और उनके कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स को एकदम इंगेजिंग अंदाज में लिखा है। ये किताब सिर्फ एक पॉलिटिकल बायोग्राफी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि एक फीमेल लीडर ने किस तरह से पूरे नेशन की डायरेक्शन को बदल दिया। अब आप मुझे कॉमेंट्स में ये बताएं, आपने लास्ट कौन सी किताब पढ़ी थी, या फिर इंदिरा गांधी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? 24 अकबर रोड राशिद किदवई की लिखी हुई एक रोमांचक राजनीतिक किताब है जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली मुख्यालय के पते पर आधारित है और इसमें पार्टी के उतार चढ़ाव की असली कहानी पर्दे के पीछे से दिखाई गई है। ये किताब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की नेतृत्व यात्रा, उनके आसपास के लोगों, सत्ता संघर्ष, रणनीतियों और आंतरिक राजनीति को एक राजनीतिक थ्रिलर के अंदाज में बयान करती है। संशोधित और अपडेटेड संस्करण में राहुल गांधी पर एक नया अध्याय भी शामिल है जो उनके राजनीतिक करियर और कांग्रेस में उनकी भूमिका को विस्तार से समझाता है। राजदीप सरदेसाई ने इसे रिटन लाइक अ पॉलिटिकल थ्रिलर कहा है और सचमुच ये उन सब के लिए एक अनिवार्य किताब है जो भारतीय राजनीति, कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की अंदरूनी यात्रा को समझना चाहते हैं। बुक ऑन लिबर्टी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल पहली दफ़ा 1859 में पब्लिश हुई एक ऐसी टाइमलेस किताब है जो फ्रीडम का असल मतलब समझाती है। इसमें मिल ने बहुत सिंपल और स्ट्रॉन्ग अंदाज में ये कहा कि हर इंसान को सोचने, बोलने और जीने की आज़ादी है, बस शर्त यह है कि उसके एक्शन से दूसरों को नुकसान न हो। इसको ही हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है। मिल कहता है कि सोसाइटी या गवर्नमेंट को कभी भी मुख्तलिफ ओपिनियंस को साइलेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच सिर्फ खुली गुफ्तगू और डिबेट से सामने आता है। वो इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने पर जोर देता है और ये दिखाता है कि असल तरक्की तब होती है जब हर शख्स अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जी सके। ये क्लासिक बुक मॉडर्न डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच का फाउंडेशन बनी और आज भी दुनिया के लिए एक पावरफुल गाइड है जो पर्सनल लिबर्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस समझाती है। पॉलिटिक्स में असली ताकत उन्हीं के हाथ में टिकती है जो दिखने वाले चेहरों के पीछे छुपी हकीकत को समझ लेते हैं, और इसी हकीकत को बेपनाह खोलती है निकोलो मैकियावेली की अमर किताब द प्रिंस, जो सबसे पहले 1513 में लिखी गई और 1532 में पब्लिश हुई। ये किताब एक रूलर के लिए पावर को पाने, उसे बनाए रखने और दुश्मनों के खिलाफ सरवाइव करने की अल्टीमेट गाइड है। मैकियावेली ने इसमें पॉलिटिकल रियलिज्म का नया दौर शुरू किया, जहां मॉरल वैल्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अथॉरिटी और कंट्रोल, जहां रूलर को प्यार से ज्यादा लोगों का डर चाहिए होता है और जहां स्ट्रॉन्ग आर्मी एक स्टेट की असली बैकबोन होती है। द प्रिंस में डिस्कस किए गए टॉपिक्स में शामिल हैं स्टेट और पावर की बुनियाद, रूलर्स के लिए स्ट्रैटेजीज, एनिमीज को डील करने के तरीके, फियर वर्सेस लव का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और वो हार्श रियलिटीज जो एक सक्सेसफुल रूलर को अपनानी पड़ती हैं। इस मास्टरपीस से मैकियावेलिनिज्म का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ जो पॉलिटिक्स में कनिंग और क्लेवरनेस का सिंबल बन गया। रूफस गुडविन के ट्रांसलेशन और बेंजामिन मार्टिनेज के इलस्ट्रेशन के साथ ये एडिशन एक टाइमलेस क्लासिक है जो आज भी लीडरशिप और पॉलिटिक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी और समझी जाने वाली किताबों में शुमार होती है। साइमन ब्लैकबर्न की किताब प्लेटो की रिपब्लिक, छूर फलसफी और सियासी शाहकार द रिपब्लिक 380 कबल मसीह को आसान जबान में समझाती है। प्लेटो, जो सुकरात का शागिर्द था, इस मुकालमे के जरिए अदल, मिसाली रियासत, काली पोलिस, फलसफी बादशाह, जमहूरियत और जुल्म के मसाइल, रूह के 3 हिस्सों के नजरिए और मशहूर गार की मिसाल पर बहस करता है जो मगरबी सियासी फलसफे का बुनियादी नुस्खा माना जाता है। असली किताब में प्लेटो ने सवाल उठाए कि अदल क्या है, बेहतरीन हुकूमत कैसे बन सकती है और हकीकी इल्म व हिकमत का सियासत में क्या किरदार होना चाहिए, और साइमन ब्लैकबर्न ने इन सब मौजूआत को जदीद सियासत, अखलाक और मुआशरे से जोड़कर समझाया है। इस किताब की अहमियत इसलिए है कि ये दिखाती है कि किस तरह प्लेटो के ख्यालात ने अरस्तू, ऑगस्टीन, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और मार्क्स तक को मुतासिर किया और आज की जमहूरियत, तालीम और सियासत की बहसों में भी मुताल्लिक हैं।
साइमन ब्लैकबर्न की किताब प्लेटो की रिपब्लिक, जो बुक्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड सीरीज 2006 अटलांटिक बुक्स से प्रकाशित लगभग 240 पेज है, एक आधुनिक मार्गदर्शिका है जो प्लेटो के मशहूर दार्शनिक और राजनीतिक शाहकार द रिपब्लिक 380 ईसा पूर्व को आसान जुबान में समझाती है। प्लेटो, जो सुकरात का शिष्य था, इस संवाद के जरिए न्याय, आदर्श राज्य कलिपोलिस, दार्शनिक राजा, लोकतंत्र और अत्याचार के मुद्दों, आत्मा की 3 भागों की थियरी और मशहूर गुफा की उपमा पर बहस करता है, जो पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का बुनियादी ग्रंथ माना जाता है। असली किताब में प्लेटो ने सवाल उठाए कि न्याय क्या है, बेहतरीन शासन कैसे बन सकता है और वास्तविक ज्ञान और बुद्धि का राजनीति में क्या किरदार होना चाहिए। और साइमन ब्लैकबर्न ने इन सब विषयों को आधुनिक राजनीति, नैतिकता और समाज से जोड़कर समझाया है। इस किताब की अहमियत इसलिए है कि ये दिखाती है कि किस तरह प्लेटो के विचारों ने अरस्तु, ऑगस्टीन, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और मार्क्स तक को प्रभावित किया और आज के लोकतंत्र, शिक्षा और राजनीति की बहसों में भी प्रासंगिक हैं। गुजरात फाइल्स, एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप एक शानदार और बेबाक इन्वेस्टिगेटिव किताब है जिसे राना अयूब ने लिखा है, जो भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल और कम्युनल कवर अप को एक्सपोज करती है। ये किताब एक अंडरकवर जर्नलिस्ट के तौर पर उनके सालों तक चलने वाले रिस्की मिशन का नतीजा है, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों और फेक एनकाउंटर्स के पीछे छुपे सच को सामने लाया। हर पेज में एक ग्रिपिंग नैरेटिव है जो ना सिर्फ पावर कॉरिडोर्स की अंधेरी सियासत को बयान करता है, बल्कि इंसाफ की तलाश में एक औरत की हिम्मत और जज्बे का सबूत भी देता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टेस्टिमनी है जो रीडर को शुरू से आखिर तक बांध कर रखती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि हकीकत को छुपाने के लिए सियासत कैसे अपने रंग बदलती है। रवीश कुमार की किताब बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बदलते मायनों पर गहन चिंतन है, जिसमें वे बताते हैं कि सच बोलना और सवाल पूछना किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है। ये किताब डर और चुप्पी के उस माहौल पर चोट करती है जहां सत्ताधारी वर्ग असहमति की आवाज को दबाना चाहता है। रवीश कुमार सरल लेकिन पैने शब्दों में समझाते हैं कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता बोलती है, सवाल उठाती है और सत्ता से जवाब मांगती है। बोलना ही है दरअसल एक ऐसा संदेश है जो हर रीडर को याद दिलाता है कि चुप्पी अन्याय की साथी है और सच बोलना ही असली साहस है। बाइज्जत बरी मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान की लिखी हुई एक अहम किताब है जो उन बेगुनाह मुसलमानों की दर्दनाक कहानियां बयान करती है जिन्हें झूठे इल्जामात और साजिशों के तहत सालों तक जेलों में यातनाएं झेलनी पड़ी और आखिरकार अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया। इन सभी मामलों में ज्यादातर घटनाएं कांग्रेस की सरकार के दौर में सामने आईं, जब बेगुनाह मुसलमानों को आतंकवाद और अन्य झूठे मुकदमों में फंसाया गया। किताब में न सिर्फ इन मासूमों के दुख दर्द और उनके टूटे हुए ख्वाब दर्ज हैं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली, मीडिया ट्रायल और समाज में पनपते नफरत के माहौल की हकीकत भी सामने रखी गई है। ये किताब इंसाफ, इंसानियत और सच की लड़ाई का आईना है, जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि जब बेगुनाही साबित हो भी जाए तो क्या वाकई इंसान अपनी इज्जत और खोए हुए साल वापस पा सकता है। अगर आप सभी को बुक की वीडियो पसंद है तो आप इस पेज को एक बार जरूर चेक करें। थैंक्स। द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, रॉबर्ट फिस्क की एक शानदार और गहरी किताब है जो पिछले 1 सदी से ज्यादा वक्त में मिडल ईस्ट पर होने वाली जंगों, खून रेस सियासत और कॉलोनियल कुव्वतों की तबाही को तफसीली तौर पर समझाती है। इसमें इराक, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, ईरान और लेबनान जैसे मुल्कों की तारीख से लेकर एंग्लो अमेरिकन इंपीरियलिज्म, इजराइल के जुल्म और मुस्लिम दुनिया पर होने वाले असरात तक का नक्शा खींचा गया है। रॉबर्ट फिस्क ने अपनी शहादत, रिपोर्ट्स और मकामात पर मौजूद रहकर लिखे गए वाकयात के जरिए दुनिया को दिखाया है कि किस तरह इंसानियत को जंगों ने बर्बाद किया और किस हद तक पावर और प्रोपेगेंडा ने हकीकत को दबा दिया। ये किताब असल में जंगों के असली चेहरे और इंसाफ के लिए एक आईना है।
सलमा दब्बा की आउट ऑफ इट एक असरदार नॉवेल है जो गाजा की दमघोंटू फिजा, लगातार बमबारी और इजराइल के जुल्म व कब्जे के साये में पलती जिंदगियों का कश्मकश सामने लाती है। ये कहानी सिर्फ राशिद और ईमान जैसे अफराद की नहीं बल्कि हर उस फलस्तीनी की है जो अपनी ज़मीन, आज़ादी और पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दब्बाग अपनी फिक्शनल रिपोर्टाज शैली में साबित करती हैं कि इजराइल का कब्जा सिर्फ एक सियासी मसला नहीं बल्कि इंसानियत के जख्मों पर खुला वार है, जहां एक तरफ जवानी के ख्वाब हैं और दूसरी तरफ टैंकों, चेक पॉइंट्स और मिसाइलों की सख्त हकीकत। आउट ऑफ इट एक ऐसी पुकार है जो पूरी दुनिया को याद दिलाती है कि फ़लस्तीन की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती और हक की जंग को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जूडिथ बटलर की किताब प्रिकेरियस लाइफ द पावर्स ऑफ मॉर्निंग एंड वायलेंस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर दुनिया को इंसाफ नहीं बल्कि खौफ और जुल्म दिया। अपने नागरिकों की मौत पर तो आंसू बहाए गए, मगर इराक, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मासूमों की जानें बस कोलैटरल डैमेज कहलाकर मिटा दी गईं। ये किताब याद दिलाती है कि हर जिंदगी बराबर कीमती है और जब तक कुछ की मौत पर शोक और कुछ की मौत पर चुप्पी रहेगी तब तक असली अमन नामुमकिन है। यही सच्चाई है जिसे सुनना बहुतों के लिए असहज है लेकिन अनदेखा करना नामुमकिन। इनसाइड द पेंटागन पेपर्स एक ऐसी पावरफुल किताब है जो 1971 के उस एक्सप्लोजिव स्कैंडल को समझाती है जिसमें पेंटागन पेपर्स लीक हुए थे। ये वो टॉप सीक्रेट यूएस डिफेंस स्टडी थी जिसमें वियतनाम वॉर की असली स्ट्रैटेजी, फेलियर्स और गवर्नमेंट के झूठ एक्सपोज हुए। डैनियल हेल्सबर्ग ने जब इसे लीक करके न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट तक पहुंचाया तो दुनिया को समझ आया कि अमेरिका अपने लोगों को धोखा दे रहा था। ये किताब सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि प्रेस फ्रीडम, ट्रूथ और डेमोक्रेसी की ताकत का सबूत है। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसने हमेशा के लिए अमेरिकन पॉलिटिक्स और मीडिया का चेहरा बदल दिया। फिलिप सैंड्स की टॉर्चर टीम, डिसेप्शन, क्रूअल्टी एंड द कॉम्प्रोमाइज ऑफ लॉ एक शिद्दत से लिखी गई इन्वेस्टिगेटिव किताब है जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के दौरान ग्वांटानामो बे में इस्तेमाल की गई टॉर्चर पॉलिसीज का असली चेहरा बेनकाब करती है। इसमें ऑथर ने एक्सपोज किया है कि कैसे बुश एडमिनिस्ट्रेशन के हाई ऑफिशियल्स, खासकर डोनाल्ड रम्सफेल्ड और उनकी लीगल टीम ने इंटरनेशनल लॉ और जिनेवा कन्वेंशंस को ट्विस्ट करके डिटेनीज पर जुल्म को लावल बनाने की कोशिश की, जहां लीगल डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट मेमोज के जरिए टॉर्चर के सबसे सख्त तरीके जैसे स्लीप डिप्रिवेशन, स्ट्रेस पोजीशंस और सीवियर इंट्रोगेशन को अप्रूव किया गया। सैंड्स ने डिटेल में दिखाया कि एक डिटेनी मोहम्मद अल कहतानी के साथ किया गया जुल्म सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की तस्वीर है। और ये किताब एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जो वार्न करती है कि जब कानून को पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है तो इंसाफ और इंसानियत दोनों तबाह हो जाते हैं। इजराइल अपनी सिक्योरिटी के नाम पर जिस तरह से डिकेड्स तक सीक्रेट असैसिनेशंस और टारगेटेड किलिंग्स करता रहा है वो असल में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो इंसानियत के कानून और इंसाफ की बुनियादों को तोड़ देता है। रोनन बर्गमैन की राइज एंड किल फर्स्ट खुद एक्सपोज करती है कि कैसे मोसाद और इजरायली एजेंसीज ने पैलेस्टीनियन लीडर्स, साइंटिस्ट्स और हर उस शख्स को निशाना बनाया जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था और इस रास्ते में बेगुनाह औरतों और बच्चों का खून भी बहा दिया गया। ये पॉलिसी न सिर्फ इलीगल और इमोरल है बल्कि इसने नफरत, जंग और खून रेजों का सिलसिला बढ़ाया, जिसका सबूत ये है कि आज भी मिडिल ईस्ट में अमन दूर की बात है और इजराइल अपनी जुल्म और ज़बरदस्ती की वजह से दुनिया भर में बदनाम होता जा रहा है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इस पेज को ज़रूर सपोर्ट करें। 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर जो जंग शुरू की, जेन मेयर की द डार्क साइड उसके पीछे छिपे हुए राज खोलती है। ये किताब दिखाती है कि CIA ने कैसे मुस्लिम कैदी को सीक्रेट प्रिजन्स में रखा, उन्हें दिन रात टॉर्चर किया गया, पानी में डुबाया गया, नींद छीन ली गई और इंसानियत के खिलाफ तरीकों से उनसे इकरार करवाने की कोशिश की गई। ग्वांटानामो बे और अफगानिस्तान के कैंप्स में मुसलमानों को बिना ट्रायल के सालों तक कैद रखा गया, सिर्फ शक की बुनियाद पर। मेयर बताती हैं कि ये सब एक ऐसे मुल्क ने किया जो दुनिया को आज़ादी और इंसाफ का पैगाम देता है। द डार्क साइड सिर्फ पॉलिसीज का एक्सपोज नहीं बल्कि वो जख्म दिखाती है जो मुस्लिम उम्मा पर छोड़ दिए गए और ये याद दिलाती है कि जब इंसान अपने उसूल भूल जाए तो असल जुल्म वहीं से शुरू होता है। ऐसी ही और बुक्स की नॉलेज के लिए पेज को जरूर फॉलो करें। नो प्लेस टू हाइड, एडवर्ड स्नोडन, द NSA,
and the US Surveillance State is a powerful and eye-opening book in which Pulitzer Prize-winning journalist Glenn Greenwald documents the real events that expose the hidden surveillance empire of America's most secretive intelligence agency, the NSA. It reveals in detail how Edward Snowden leaked classified US documents showing that America was running massive surveillance not only on its own citizens, but also on global leaders, governments, and institutions, using programs like PRISM and metadata collection to capture billions of communications worldwide. Greenwald goes beyond Snowden's story to analyze the United States itself, its political system, its foreign policy, and the rise of a surveillance state that undermines the very foundations of democracy and individual freedom, making this book not just an investigative account, but a historical testimony of America's pursuit of power in the digital age. Confessions of an Economic Hitman by जॉन पर्किंस एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर और बहुत ही कंट्रोवर्शियल मेमोir है जो पहली बार 2004 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में ऑथर अपना पर्सनल तजुर्बा बयान करता है जब वो एक इकोनॉमिक हिटमैन EHM के तौर पर अमेरिकन कॉर्पोरेट्स और एजेंसीज के लिए काम करता था। पर्किंस के मुताबिक उनका काम डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका को बड़े लोन्स देना होता था वर्ल्ड बैंक, IMF और प्राइवेट कंपनीज के जरिए, ताकि उन मुल्कों को कर्जों के जाल में फंसाकर उनकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस, मिनरल्स और पॉलिटिकल पॉलिसीज पर अमेरिका का कंट्रोल हो सके। जब कोई लीडर अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ा होता तो उन्हें गिराया जाता या कभी असैसिनेशन तक कर दी जाती। ऐसी ही बेस्ट बुक्स के लिए पेज को जरूर फॉलो करें। Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty by Darren Acemoglu and James A. Robinson, first published in 2012, is a groundbreaking book that explains why some nations succeed while others remain trapped in poverty and instability. The authors argue that the true cause of prosperity or failure lies not in geography, culture, or resources, but in the nature of political and economic institutions. When institutions are inclusive, offering equal opportunities, protecting rights, and encouraging innovation, nations thrive, as seen in the United States, England, and South Korea, whereas extractive institutions, controlled by a small elite who exploit the majority, lead to stagnation, inequality, and collapse, as witnessed in North Korea, Somalia, and Congo. Blending economics, politics, and history with compelling case studies. The book presents a powerful framework for understanding global inequality, earning worldwide recognition, and a shortlist position for the FT and Goldman Sachs Business Book of the Year Award. नोआम चॉम्स्की की किताब मीडिया कंट्रोल, द स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट्स ऑफ प्रोपेगेंडा एक कंसाइज मगर डीपली इंसाइटफुल एनालिसिस है जो समझाती है कि कैसे हुकूमत, कॉरपोरेशंस और रूलिंग एलीट मीडिया को कंट्रोल करके अवाम के जहनों पर असरअंदाज डालते हैं, उनकी सोच और फैसलों को शेप करते हैं और डेमोक्रेसी को सिर्फ एक इल्यूजन बना देते हैं। चॉम्स्की इसमें वॉल्टर लिपमन के मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जिसमें प्रोपेगेंडा को डेमोक्रेसी की ज़रूरत कहा गया था, और ये दिखाते हैं कि किस तरह न्यूज़ और मीडिया नैरेटिव्स वॉर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के लिए इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि अवाम एलीट के इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करें बिना उसका शोर रखे। किताब दरअसल एक इंटेलेक्चुअल वार्निंग है कि फ्री प्रेस के नाम पर जो चेहरा दिखाया जाता है वो असल में एक मास्क है जो पावर स्ट्रक्चर्स के लिए काम करता है, और इसमें यह पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि जब तक मीडिया को समझने की इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी ना हो तब तक डेमोक्रेसी असल मानी में मुमकिन नहीं। 128 पेजेस पर मुश्तमिल ये मास्टरपीस रीडर्स को एक ऐसे नजरिए से रोशनास करवाता है जो प्रोपेगेंडा और मीडिया के असली किरदार को बेनकाब करता है और सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों के फ्यूचर पर सवाल उठाता है। हु रूल्स द वर्ल्ड नोम चॉम्स्की की एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल मास्टरपीस है जो पहली बार 2016 में पब्लिश हुई थी, मेट्रोपॉलिटन बुक्स, पेंगुइन बुक्स, जिसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर्स का गहरा तज्जिया किया गया है। इस किताब में चॉम्स्की ने बताया है कि दुनिया के अफेयर्स असल में गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और एलीट्स के कंट्रोल में होते हैं, जो अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए वॉर्स, प्रोपेगेंडा और इंटरवेंशंस करते हैं। जैसे इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम के हवाले से उन्होंने यूएस की ग्लोबल पुलिसमैन वाली पॉलिसी और उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस समझाए हैं। साथ ही इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स और ग्लोबल इनइक्वालिटी पर तफसीली गुफ्तगू की है। इस एडिशन में
डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक नया आफ्टरवर्ड भी शामिल है और किताब का सेंट्रल थीम ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर असल में सुपर पावर्स और इकोनॉमिक एलिट्स के हाथ में है जो इंसाफ और अमन के बजाय अपने पावर और फायदे को प्रोटेक्ट करते हैं। जियोपॉलिटिक्स की बेस्ट बुक्स के लिए इस पेज को जरूर फॉलो करें। द हॉलोकॉस्ट इंडस्ट्री रिफ्लेक्शंस ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जूइश सफरिंग। नॉर्मन जी फिंकलस्टीन की 2000 में पब्लिश्ड एक मशहूर और कंट्रोवर्शियल किताब है जो हॉलोकॉस्ट के बाद जूइश सफरिंग के सियासी और माली एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस्ड है, जिसमें ऑथर का दावा है कि हॉलोकॉस्ट की असली ट्रेजेडी और सर्वाइवर्स की कुर्बानियों को कुछ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ग्रुप्स ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कॉम्पेंसेशन और पॉलिटिकल लेवरेज ज़्यादातर एलीट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ आई, जबकि असल सर्वाइवर्स को कम फायदा मिला। और इस किताब ने जूइश ऑर्गेनाइजेशंस, इजराइल और वेस्टर्न पॉलिटिक्स पर बड़ी डिबेट को जन्म दिया, जहां कुछ लोगों ने इसे बोल्ड और सच बोलने वाली रिसर्च कहा, जबकि दूसरे लोगों ने इसे ऑफेंसिव और एंटी सेमिटिक नैरेटिव्स को फ्यूल करने वाला करार दिया। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हिस्ट्री के एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग के सियासी इस्तेमाल पर एक नया और क्रिटिकल नज़रिया पेश करती है जो अभी तक एकेडेमिया, पॉलिटिक्स और मीडिया में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाता है। ऐसी ही और बुक्स के बारे में जानने के लिए इस पेज को सपोर्ट करें।